Hello students, today in this video I will explain you exercise 5th E. See question number first. In a class 3/8 of the students are girls. So here fraction is given 3/8. 3/8 are girls. Numbers of girls are not given. Here fraction is given. And after that it is written if there are 72 students in all. That means total number of students in the class are 72. So first of all we will write total number of students. Total number of students in class are how many? 72 students are there in all. From these 72 students, number of girls are not given, but fraction for girls are given. So we will use this one fraction. Girls, we have to write number of girls. In order to find the number of girls, what you have to do? Fraction is given 3/8 of the student. So here you have to write 3/8 of. In place of you have to take multiply. Of means multiply होता है. So 3/8 of के लिए multiply लगाया. Of के बाद है students and total students in the class are 72. तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए फ्रैक्शन है 3/8. दैट फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 72. 8 9 जा 72. देन 3 into 9 will become 27. So number of girls we got. How many girls are there in the class? So 27 girls are there in the class. So like this you have to do question number first. Now see question number third. Third question. A club has 360 members. So first of all we have to write total number of members. Total members in a club are 360. So total number of members in a club are 360, of which 80 are government officers. So you have to write number of government officers are number of government officers. How many government officers are given here? 80 are the government officer and the rest are businessmen. Rest means बचे हुए. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिमेनिंग मेंबर्स आपको क्या करना है? टोटल मेंबर में से गवर्नमेंट वाले मेंबर्स को क्या करना है? रिमूव कर देना है, माइनस कर देना है. सो व्हाट इज दैट? रेस्ट आर बिजनेसमैन. सो हियर यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बिजनेसमैन. We have to calculate number of businessmen. So how many businessmen are there? क्वेश्चन में बोला है रेस्ट आर द बिजनेसमैन. रेस्ट मीन्स बचे हुए. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिमेनिंग मेंबर्स व्हाट यू हैव टू डू? टोटल मेंबर्स माइनस गवर्नमेंट ऑफिसर. ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी विल गेट 280. सो हाउ मेनी बिजनेसमैन आर देयर? 280 बिजनेसमैन आर देयर. बट फ्रैक्शन ऑफ मेंबर ऑफ क्लब आर बिजनेसमैन. आपको क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन बताना है. किसका फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लब are businessmen. So what you have to write? You have to write fraction of businessmen. In order to write the fraction for the businessman, what you have to do? fraction के लिए क्या करना होता है? जिस चीज़ का फ्रैक्शन है, यहाँ पर हमें किसका फ्रैक्शन बनाना है? बिजनेसमैन का. तो जिसका फ्रैक्शन बनाना होता है वो न्यूमरेटर में लेना है और टोटल वैल्यू यू हैव टू टेक इन द डिनोमिनेटर. तो बिजनेसमैन का फ्रैक्शन बनाना है. सो हाउ मेनी बिजनेसमैन आर देयर? 280. 280 वी हैव टू टेक इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लेना है? टोटल मेंबर्स. टोटल मेंबर्स इन ए क्लब आर 360. सो हियर वी हैव टू टेक टोटल. नाउ लास्ट 2 0 विल गेट कैंसिल्ड. नाउ वी हैव टू कैंसिल दीज टू नंबर्स ऑल्सो, 28 and 36. 4 table we can cancel these two with the table of 4. 4 7 ja 28. 4 9 ja 36. Now on cancelling these two we got 7/9. तो फ्रैक्शन हमने फाइंड कर दिया है बिजनेसमैन का. हाउ मेनी बिजनेसमैन वर देयर? 7/9 आर द
businessman. So like this you have to do question number 3rd. Now all of you see question number 6th. Sixth question. The sum of three numbers is 2 whole 1 upon 36. What is given here? Sum. Sum means plus. किनका sum दिया हुआ है? 3 numbers का. So what you have to write? First number plus second number plus third number. When we will add 3 numbers, we will get answer 2 whole 1 upon 36. It is given in the question. तीनों को ऐड करके 2 whole 1 upon 36 आएगा. After that 2 of them are 7 upon 12 and 11 upon 18. 2 of them means first के नीचे आपको लिखना है 7 upon 12 प्लस सेकंड के नीचे क्या लिखना है 11 upon 18. तो फर्स्ट वाला भी दिया हुआ है, सेकंड वाला भी दिया हुआ है. क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू फाइंड द थर्ड नंबर. सो थर्ड वन वी डोंट नो. सो थर्ड वी विल राइट इट एज इट इज. थर्ड आप ऐसे ही लिखेंगे और यू कैन डू वन थिंग. आप इसमें कोई एक अल्फ़ाबेट डाल दें, एनी अल्फ़ाबेट. मान लेते हैं एक्स. यहाँ पे हमने एक्स डाल दिया. इज इक्वल टू. नाउ वी हैव टू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन. 36 2 जा 72 प्लस 173 upon 36. Now next step, what you have to do? Here this number we know, this number also we know what is the value, this number also. Only this x value we don't know. So what you have to do? This is the equal to sign. On the left side the x is written and these numbers are also written. These numbers we will take on the right hand side. हम इन दोनों को कहाँ ले आएंगे? Right hand पे ले आएंगे. So when we will bring these numbers on the right hand, the sign of these number will get changed. इनके साइन चेंज हो जाएंगे. ये लेफ्ट हैंड पे देखना है 11 upon 18 के लेफ्ट हैंड पे क्या है प्लस. तो जब ये 11 upon 18 इधर आएगा दिस साइन विल गेट चेंज. ये चेंज हो जाएगा. तो इक्वल टू तो ऐसे ही लिखना है आपको. इक्वल टू के बाद क्या है 73 upon 36. दिस वन ऑल्सो यू हैव टू राइट एज इट इज. प्लस 11 upon 18 उधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 11 upon 18. नाउ दिस नंबर ऑल्सो. इसके भी लेफ्ट हैंड पे कोई सा साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लेना है प्लस साइन. नाउ दिस प्लस नंबर विल कम हेयर ऑन राइट हैंड साइड. तो ये प्लस वाला भी क्या बन जाएगा उधर आके माइनस. सो ये आएगा -7 upon 12. तो दीज टू नंबर्स वी हैड रिटन हेयर ऑन द राइट साइड. अब लेफ्ट पे क्या रह जाएगा? ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, तो एक्स लिखेंगे यहाँ. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू? एलसीएम यू विल टेक 36 का, 18 का और 12 का. यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 36, 18 एंड 12. एक साथ लेंगे 36, 18 एंड 12. टू के टेबल से करेंगे. 2 18 जा, 2 9 जा, 2 6 जा. अगेन वी विल डू विथ 2 9 जा 18, 9 as it is, 2 3 जा 6. Now we have to do with 3 table. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Again you have to do with the table of 3. दोबारा 3 के टेबल से करेंगे. Then we will get 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1 as it is. अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दें. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. तो एलसीएम कितना आया 36. तो अपॉन लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे आप 36. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? लेफ्ट हैंड पे x था तो आप लेफ्ट हैंड पे x ही लिखेंगे. 36 1 जा 36 होता है, 1 into 73 करेंगे. माइनस 18 2 जा 36 होता है तो 2 into 11. माइनस 12 3 जा 36 होता है तो 3 into 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 21. आप यहाँ लिखे पहले 3 into 7. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर. 73 1 जा 73, 11 2 जा 22, 7 3 जा 21 अपॉन 36. नाउ नेक्स्ट स्टेप 73 में से 22 को आपको क्या करना है माइनस. सो माइनस करेंगे वी विल गेट 51. बचेगा, इन दोनों को माइनस कर दिया है, ये बच गया है, इसको ऐसे ही लिख दो. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर ऑल्सो. इन्हें भी माइनस करेंगे. 51 minus 21 करेंगे. देन वी विल गेट 30
upon 36. These two numbers we have to cancel with the table of 6. 6 5 या 30, 6 6 या, तो फाइनल आंसर आपका x का आ गया 5/6. So like this you have to do question number 6. Now see question number 9th. Ninth question. Mrs. Sharma spent rupees 5,250. So here we will write Mrs. Sharma spent how much rupees? 5,250 rupees she had spent. After that she is left with 4/25 of her salary. यहाँ पर मनी नहीं गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है. आगे क्या बोला इन्होंने? फाइंड हर सैलरी. आपको सैलरी फाइंड करनी है. सो वी विल एज्यूम लेट हर सैलरी इज इक्वल टू x. मान लेंगे कि उनकी सैलरी कितनी है? x है. फर्स्ट सेंटेंस वी हैड ऑलरेडी रिटन हियर. फर्स्ट सेंटेंस वाज ओवर. सेकंड सेंटेंस क्या था? फर्स्ट सेंटेंस का हाफ पढ़ लिया था. हाफ पार्ट रहता है वो लिखते हैं. शी इज लेफ्ट विद 4/25 ऑफ हर सैलरी. क्या बोला इन्होंने? मनी जो उनके पास लेफ्ट है वो क्या है? 4/25 ऑफ के लिए क्या लगाना है? मल्टीप्लाई. ऑफ के बाद क्या बोला है? हर सैलरी. और हर सैलरी हमने क्या ली है? x. तो यहाँ लेंगे x. दैट मीन्स 4x/25. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? उन्होंने स्पेंड इतने मनी कर दी है. x हमने खुद माना है कि उनकी सैलरी इतनी आ रही है. मनी लेफ्ट क्वेश्चन में बोला था 4/25 ऑफ हर सैलरी. इसको सॉल्व करके 4x/25 आ गया. ये मनी लेफ्ट जो हमने निकाली है ये क्वेश्चन में गिवन थी. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब आप खुद निकालेंगे मनी लेफ्ट. कैसे निकालेंगे? एक मनी लेफ्ट इस मेथड से निकालेंगे आप. टोटल सैलरी मीन्स, सैलरी क्या होती है? सैलरी मीन्स वो कमा रही है, इनकम है उनकी. हाउ मच इनकम शी इज हैविंग? x. तो टोटल मनी जो उन्होंने अर्न करे हैं वो x है. उसमें से आप हटा दो जो पैसे उन्होंने खर्च कर दिए. कौन सी मनी खर्च कर दिया? मनी स्पेंड करी है उन्होंने 5,250. सो मनी लेफ्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल मनी जो उन्होंने अर्न करी थी उसमें से मनी स्पेंड वाली हमने क्या कर दी? माइनस. अब मनी लेफ्ट के नीचे आप ये वाला मनी लेफ्ट का आंसर लिखेंगे. मनी लेफ्ट कितना है? 4x/25. तो इस वाले मनी लेफ्ट के नीचे आपको क्या लिखना है? 4x/25 इक्वल ऐसे लगाएंगे x -5 2 5. अब अगला स्टेप क्या करना है आपने? ये नंबर इधर ले आएंगे और ये पूरा नंबर इधर ले आएंगे. तो जब पोजीशन चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होगा. ये माइनस का 5,250 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 5,250 इक्वल x यहीं रहेगा. इसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है. 4x/25 के लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं है. दैट मीन्स ये प्लस का है. उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x/25. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक एलसीएम. आप एलसीएम लेंगे इधर. ये तो ऐसे ही लिखेंगे 5250 इक्वल एलसीएम 1 और 25 का 25 आएगा. 125 जा 25 होता है और उसकी x से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 25x माइनस 25 1 जा 25 होता है. 1 × 4x करेंगे तो क्या आएगा? 4x. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इनको माइनस करना है. बाकी वर्क सारा ऐसे ही लिखेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू? 5250 इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 25x माइनस 4x का आंसर जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21x आ जाएगा. सो हेयर यू हैव टू राइट 21x अपॉन 25 नीचे वाला. नेक्स्ट स्टेप अपॉन में जो 25 है वो लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ये नीचे दिखा था तो आप इसे नीचे मीन्स डिवाइड में. तो जब इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई. 5250 की मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगी.
21 ऊपर लिखा हुआ था x के साथ, तो जब इधर की साइड लाएंगे तो इसे कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे, अपॉन में 21। तो 25 नीचे से ऊपर लिख दिया, 21 ऊपर से नीचे लिख दिया, और उधर क्या रह जाएगा, इक्वल टू के पास x। नाउ यू हैव टू कैंसिल दीज नंबर, 7 3 जा 21, इसे भी काटेंगे, 7 7 जा 49, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 0। दोबारा कट करेंगे, 3 1 जा 3, इसको भी 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 1 और 5 हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, और 0 लास्ट वाली लास्ट में आ जाएगी। नाउ 250 मल्टीप्लाई 25 आपका रह गया है, इज इक्वल टू x। जो कट करने के बाद बचा था वो यहाँ लिख दिया है। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6250 इज इक्वल टू x। तो ये x क्या है, ये x है सैलरी, और आपको फाइंड भी क्या करनी थी, सैलरी फाइंड करनी थी। सो टोटल सैलरी जो उनकी है वो कितनी है, 6250 रुपीज़ है। So this is the answer of question number 9. So like this you have to do all the questions up to question number 10. So rest of the questions I will explain you in the next video. So all of you finish up to question number 10 in your fair notebook.